تو کل کی جو کلاس تھی اس میں ہم نے کچھ چیزوں کی طرف اشارہ کیا تھا، اور خاص اس میں وہ میٹنگ تھی جو تھیوڈر ہرزل کے ذریعے سے سوئٹزرلینڈ کے بال شہر میں رکھی گئی، اور اس میں جو مسائل فیس کر رہے تھے جیوس کمیونٹی اس وقت، اس پر بات چیت ہوئی، اور آخر میں یہ پروپوزل آیا کہ ایک جیوس اسٹیٹ ہونا چاہیے۔ کہاں ہونا چاہیے اس پر بھی کافی بحث و مباحثے کے بعد یہ طے ہوا کہ فلسطین سے، کیونکہ جس کمیونٹی کا اٹیچمنٹ ہے تو وہاں پر سارے یہودیوں کو جا کر بس جانا چاہیے۔ لیکن پرابلم اس میں یہ تھی کہ فلسطین کی جو ٹیریٹری، فلسطین کی جو زمین ہے وہ اوٹومن ٹیریٹری تھی، اوٹومن امپائر کے کنٹرول میں تھی وہ۔ چنانچہ یہودی اس بات کا انتظار کر رہے تھے، انہوں نے کوشش کی پہلے تو سلطان عبدالحمید سے کانٹیکٹ کرنے کی کہ کسی طریقے سے ہم کو زمین مل جائے، اور سلطان عبدالحمید اور ان کی خلافت چونکہ فائنینشیلی کافی ویک تھی، سک مین آف یوروپ اس کو کہا جاتا تھا، تو یہودی یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ہم جب سونے چاندی کے ڈھیر ان کے قدموں میں لا کر ڈال دیں گے تو وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے، اور فلسطین کے اندر ہم کو بسنے کی اجازت دے دی جائے گی، یعنی ہم کو زمین دے دی جائے گی۔ لیکن وہ ان کا جو فیل ہو گیا۔ اس کے بعد بہت سارے ان کے پروپوزلس آئے۔ یہ بھی پروپوزل اس میں یہ آیا تھا کہ پہلے کچھ ٹیمپریری بیسس کے لیے کسی ایک مقام پر ہم ایک ریاست قائم کر لیتے ہیں، لیکن جس میں یہ پروپوزل آیا وہ میٹنگ بڑی اٹھک پٹک کا شکار ہوئی، اور اس میں جو ہے تھیوڈر ہرزل کو خود گالیاں دی گئی، اور آخر میں یہ ہوا کہ اس آڈیٹوریم کی جہاں میٹنگ ہو رہی تھی لائٹ وائٹ وغیرہ بند کر دی گئی تاکہ لوگ جو ہے خاموش ہو جائیں۔ تو بہرحال اس کے بعد ایک ورلڈ زائنسٹ آرگنائزیشن قائم کی گئی، اس کے پریسیڈنٹ تھیوڈر ہرزل تھے، اور انہوں نے جو ہے باقاعدہ ایک کتابچہ، ایک بکلیٹ لکھی جوڈین اسٹیٹ، جس میں اس بات کو جو ہے بہت زور شور کے ساتھ بیان کیا گیا کہ جس کوشچن وڈ بی سالوڈ اونلی بائی کریٹنگ اے جوس اسٹیٹ، کہ اس مسئلے کا حل صرف اور صرف یہ ہے کہ ایک یہودی ریاست بنا دی جائے۔ اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ وہ ٹرکی کے ڈسولوشن کا انتظار کر رہے تھے، اور ان کو یہ موقع نصیب ہوا فرسٹ ورلڈ وار کے اندر، کیونکہ اسی پیریڈ کے اندر عرب اور ٹرکش نیشنلزم جو ہے شروع ہوا، جس کے نتیجے میں خلافت کا خاتمہ ہوا۔ اب ہم جو اگلا جو ہمارا ٹاپک ہے آج کا، جہاں سے ہم شروعات کر رہے ہیں، وہ ہے کہ کس طریقے سے جو برٹین کا اس میں رول تھا، اور ہر کنفلکٹ کے اندر برٹین کا، آج جو بھی کنفلکٹ دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں بڑے بڑے، اگر ہم ان کی اسٹڈی کریں تو اس میں برٹین کا رول بہت ہے۔ جس طریقے سے آج جو موجودہ کنفلکٹ میں ہم دیکھیں کہ امریکہ کا انوالومنٹ ہے، اسی طریقے سے اس زمانے کے جو آج تک وہ کنفلکٹ چلے آ رہے ہیں اس میں برٹین کا ایک بڑا رول ہے۔ اس زمانے میں برٹین نے دو تین ایگریمنٹ کیے، اور پے در پہ کیے، یعنی کہ 15، 16 اور 17، 1915 میں، 1916 میں، 1917 میں پے در پہ کر رہے ہیں، تقریباً 6 مہینے کا بھی وقفہ نہیں ہے۔ اس میں سب سے پہلا ایگریمنٹ وہ کرتے ہیں عرب سے، اور عرب میں بھی برٹین کے ایک ہائی کمشنر تھے، یعنی برٹین جو ہے ایجپٹ کے اندر اس وقت جو ہے جس طریقے سے ہمارے یہاں حکومت کر رہا تھا، اس وقت مصر کے اندر بھی اور مڈل ایسٹ کے اور دوسرے علاقوں میں بھی وہ حکومت کر رہا تھا، ابھی وہ اس میں فلسطین میں آیا نہیں تھا۔ تو حسین میک مہون ایک ایگریمنٹ ہوا، برٹین نے کیا۔ یہ میک مہون اس برٹش ہائی کمشنر تھا ایجپٹ کے اندر، اور جو حسین تھے سید حسین بن علی، جن کو شریف و مکہ کہا جاتا ہے، اور مطلب ویسے بھی شریف و مکہ ان کا ٹائٹل بھی تھا، اور ان کے جو ایگریمنٹ تھے اس سے بھی لگ رہا تھا کہ واقعی بڑے شریف ہیں۔ تو برٹین اور عرب، یعنی کہ
حسین اور میک مون، ان کے درمیان میں آپس میں ایک لیٹر جو ہے ایکسچینج ہوتے ہیں، تقریباً 10 لیٹر تھے۔ اس میں برٹین نے یہ وعدہ کیا کہ اس میں برٹین نے یہ وعدہ کیا کہ آپ لوگ جو ہے اس میں جو اوٹومن امپائر ہے اس کے خلاف آپ لوگ جو ہے بغاوت کر دیجئے، اور اگر آپ بغاوت کرتے ہیں اور اوٹومن امپائر جو ہے ختم ہو جاتی ہے تو آپ آزاد ہو جائیں گے اور آپ کی اس آزادی کو ریکوگنائز کیا جائے گا۔ ساتھ ہی اس میں یہ بات بھی شامل تھی کہ جو پیلسٹائن وغیرہ کا جو علاقہ ہے، جو اس کی اپنی ایک اہمیت تھی، تو ان سے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ یہ پیلسٹائن کا علاقہ بھی جو ہے تم کو دے دی جائے گا۔ وہ جو باؤنڈری پوری جو بنائی تھی، وہ باؤنڈری جو ہے شریف حسین نے بنائی، شریف آف مکہ نے بنائی تھی۔ یہ ایگریمنٹ برٹین نے کیا اور آپس میں لیٹر کا جو ہے ایکسچینج ہوا، اور اس بات پر توجہ دی گئی، اس بات کا مطالبہ عرب کے اور شریف مکہ کے، یہ گورنر تھے مکہ کے، ان سے کیا گیا کہ اگر آپ ریوولٹ کرتے ہیں تو آپ کی جو ہے آزادی کو ایکسیپٹ جو ہے کر لیا جائے گا۔ ایک ایگریمنٹ تو یہ تھا۔ اس کے ٹھیک 6 مہینے کے بعد برٹین نے فرانس اور رشیا سے مل کر ایک ایگریمنٹ کیا۔ اس میں کچھ تھوڑا بہت اٹلی بھی شامل تھا، لیکن اٹلی کا اتنا رول نہیں تھا، اور کافی مشہور ایگریمنٹ تھا، حالانکہ کافی سیکریٹ ایگریمنٹ تھا، بعد میں اس کے بارے میں معلوم چلا لوگوں کو کسی اخبار کے ذریعے سے۔ وہ تھا سائکس پیکوٹ ایگریمنٹ، اور یہ سائکس پیکوٹ ایگریمنٹ ٹھیک 6 مہینے کے بعد، یعنی شریف آف مکہ اور میک موہن کا جو ایگریمنٹ ہوا، اس کے ٹھیک 6 مہینے کے بعد سائکس پیکوٹ ایگریمنٹ ہوا اور برٹین نے کیا، اور یہ ایگریمنٹ تھا فرانس اور برٹین کے درمیان میں، رشیا بھی اس میں شامل تھا۔ یہ بڑا انٹرسٹنگ ایگریمنٹ تھا، ایک تو سیکریٹ ایگریمنٹ تھا، اور انٹرسٹنگ ایگریمنٹ اس وجہ سے تھا، اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طریقے کے ان کے ارادے تھے۔ یہ ایگریمنٹ یہ تھا کہ جب ہم فرسٹ ورلڈ وار کے بعد یہ جو اوٹومن امپائر ہے، اس کی جو ٹیریٹری ہے، اس پر جب ہم فتح حاصل کر لیں گے، اس کو جیت لیں گے، تو کون کون سے علاقے کس کس ملک کو دیے جائیں گے، یا کون سا علاقہ کون سا ملک لے گا، اس پر یہ ایگریمنٹ تھا، سائکس پیکوٹ ایگریمنٹ۔ تو اس میں یہ طے ہوا باقاعدہ، یہ جو گرین والے جو علاقے ہیں یہ فرانس کے انڈر میں رہیں گے، ڈائریکٹ انڈائریکٹ رہیں گے، اور یہ تھوڑا سا جو ہے جو پیلے والے جو علاقے ہیں، یہ عراق جارڈن وغیرہ کے جو علاقے ہیں، یہ برٹین وغیرہ کے کنٹرول میں رہیں گے۔ اس میں اصل بات یہ تھی کہ اس میں یہ ایگریمنٹ ہوا تھا کہ جو پیلسٹائن کا جو علاقہ ہے وہ انٹرنیشنلی گورن ہوگا، یعنی اس کا کوئی جو ہے ڈیوائڈیشن نہیں ہوگا، وہ کسی بھی ملک کے انڈر میں نہیں آئے گا، بلکہ وہ انٹرنیشنل ٹیریٹری ہوگی ایک طریقے سے۔ اب آپ دیکھیے کہ شریف حسین اور میک موہن کے درمیان میں جو ایگریمنٹ ہوا، اس میں یہ بات تھی کہ یہ پیلسٹائن جو ہے عرب کو دے دیا جائے گا اگر آپ عرب کو لوگ ریوولٹ کرتے ہیں۔ اس کے ٹھیک 6 مہینے کے بعد یہ برٹین یہ ایک سیکریٹ ایگریمنٹ کر رہا ہے فرانس اور رشیا سے۔ رشیا کو جو ہے اس میں استنبول دینے کی بات کی گئی تھی، جو کیپٹل تھا اس وقت خلافت عثمانیہ کا۔ اس میں جو ہے پیلسٹائن، اس ایگریمنٹ کے اندر، سائکس پیکوٹ ایگریمنٹ کے اندر جو ہے یہ کہا گیا ہے کہ پیلسٹائن جو ہے انٹرنیشنل ٹیریٹری ہوگی۔ اب ایک تیسرا اور ایگریمنٹ ہوتا ہے، اور تیسرے ایگریمنٹ ہوتا ہے وہ ایگریمنٹ سے زیادہ جو ہے ایک طریقے سے کسی چیز کو پروسنا ہوتا ہے، پیش کرنا ہوتا ہے۔ یہ ایگریمنٹ ہوا ہے برٹین اور جوس کمیونٹی کے درمیان میں، اور یہ کافی مشہور ڈکلیریشن تھا، بالفور ڈکلیریشن۔ یہ فورن سیکریٹری تھے آرتھر بالفور، یہ برٹین کے فورن سیکریٹری رہے ہیں،
इन्होंने एक लेटर लिखा रॉस चाइल्ड को, और रॉस चाइल्ड जो है ज्यूस कम्युनिटी थी, और पैसे के एतबार से काफी रिच कम्युनिटी। आज भी अमेरिका में जो है ये रॉथस्चाइल्ड कंपनी, और जितने जो फाइटर प्लेन वगैरह हैं ये सारे के सारे रॉथस्चाइल्ड कंपनी के हैं। तो इन्होंने इनसे वादा किया, ब्रिटेन ने, बालफोर डिक्लेरेशन के जरिए से ये लेटर लिखा गया, और मुश्किल से इसमें जो है 60 से 70 वर्ड हैं, 69 वर्ड तकरीबन इसमें हैं। लेकिन इसने जो है आज स्टेट ऑफ इसराइल बनने में जो बुनियादी हैसियत इस डिक्लेरेशन की है। इन्होंने ज्यूस कम्युनिटी से ये वादा किया कि हम जो है इस जंग के अंदर जीतेंगे, और जीतने के बाद ये जो ज्यूस पीपल का एक नेशनल होम जो है बना दिया जाएगा, या एक तरीके से ये कहना चाहिए कि ज्यूस स्टेट जो है बना दिया जाएगा। अब आप देखिए कि 3 एग्रीमेंट थे ये ब्रिटेन के, और तीनों एग्रीमेंट ब्रिटेन ने जो है उसमें तीनों एग्रीमेंट में पैलेस्टाइन का जिक्र किया है। पहला जो शरीफ ऑफ मक्का से किया उसमें तो कहा गया कि आपको फलस्तीन दे दिया जाएगा। दूसरा जो खुद का जो बड़ी ताकतों ने किए, जो सुपर पावर्स थे उस पीरियड में, ब्रिटेन और फ्रांस, ये ताकतें जो एग्रीमेंट कर रही थी, उसमें कहा गया है कि फलस्तीन के ताल्लुक से बात की गई कि उसको इंटरनेशनल टेरिटरी में रखा जाएगा। और तीसरा ये एग्रीमेंट था जिसमें यहूदियों को खत लिख के ये कहा जा रहा है कि नहीं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद आपको एक ज्यूस नेशनल होम जो है फलस्तीन के अंदर दे दिया जाएगा। अब ये तीनों एग्रीमेंट हुए। उसके बाद ब्रिटेन ने 1918 में जो टर्किश फोर्सेस थी, जो जिनके अंडर में ये पैलेस्टीनियन टेरिटरी आती थी, उन्होंने जो है सरेंडर कर दिया, और वहां से वो जो है चले गए, जेरूसलम उन्होंने खाली कर दिया, और ब्रिटेन ने जो है पूरा पैलेस्टाइन जो है कैप्चर कर लिया, आज का जो पैलेस्टाइन माना जाता है। और जितने भी एग्रीमेंट थे वो ब्रिटेन भूल गया, सिवाय आखिरी एग्रीमेंट के जो उन्होंने यहूदियों से किया। ये अखबार में जो है बताया गया है कि जेरूसलम को जो है दोबारा ब्रिटेन ने कैप्चर कर लिया है, और 673 ईयर्स ऑफ मुस्लिम रूल के बाद उसको दोबारा हासिल कर लिया। इस हेडिंग से भी अंदाजा होता है कि वो कोई चीजें भूलते नहीं हैं। हेडिंग कैसे बनाई जाती है, इससे भी हमको देखना चाहिए कि ब्रिटेन का कोई मतलब नहीं था फिलिस्तीन से, लेकिन उसके बावजूद कहा जा रहा है ये बात। बहरहाल हमको यहाँ पर ये समझना है कि ब्रिटेन ने जो 3 एग्रीमेंट किए उसमें आखिरी का एग्रीमेंट जो है ब्रिटेन को याद रहा। अब बात आती है लीग ऑफ नेशन की। उन्नीस 1922 में लीग ऑफ नेशन ने ब्रिटेन को यह अथॉरिटी दी कि वो पैलेस्टाइन के अंदर जो है रूल करे, यानी उसको एक अथॉरिटी प्रोवाइड कर दी गई, जिसको ब्रिटिश मैंडेट हम लोग कहते हैं। और ये 1922 में ये खेल शुरू हुआ, और ब्रिटिश मैंडेट के रहते हुए ये 1948 में खत्म हुआ। ब्रिटिश मैंडेट है ना, 1922 से लेकर 1948। ब्रिटिश मैंडेट का मतलब ये है कि अब ब्रिटेन पैलेस्टाइन के अंदर हुकूमत कर रहा है, और इस पीरियड के अंदर जबरदस्त तरीके की ज्यूस जो है माइग्रेशन होती है पैलेस्टाइन में। हिजरत वो लोग जो है करते हैं, बड़ी तादाद में यहूदी जो है पैलेस्टाइन में आकर बसा दिए जाते हैं। ब्रिटेन अपना जो पहला जो हाई कमिश्नर है जो पैलेस्टाइन के अंदर भेजता है, वो खुद यहूदी रहता है, उसका नाम समोइल होता है। तो और खुद यहूदी कहते हैं इज आवर समोइल, वो हमारा समोइल है। अब उसी पीरियड के अंदर अमेरिका जो है एक कमीशन बैठाता है, और उस कमीशन के अंदर जो है ये बात मतलब ये जानने की कोशिश की जाती है। 1919 में उस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पेश की,
लेकिन उस कमीशन के अंदर ये जानने की कोशिश की जाती है कि क्या फलस्तीनी आवाम वहां पर एक ज्यूस नेशनल होम या ज्यूस स्टेट के फेवर में है या नहीं। इस कमीशन की जिम्मेदारी थी कि वो ये पता करे कि फलस्तीन की जो आवाम है वो ये चाहती है कि नहीं चाहती है कि यहाँ पर एक ज्यूस नेशनल होम बने। तो इस कमीशन की रिपोर्ट ये कहती थी कि सिर्फ 10% लोग हैं जो चाहते हैं कि वहां पर एक ज्यूस नेशनल होम बने। जाहिर सी बात है, हो सकता है कि यहूदियों की आबादी जो है चार ही होगी जो उस वक्त वहां पर यहूदी मौजूद थे, लेकिन फलस्तीन के लोग तो जाहिर सी बात है कि इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। इस कमीशन ने ये रिपोर्ट अपनी दी, पेश की। अब जो ब्रिटेन ने जो बालफोर डिक्लेरेशन में जो वादा किया था कि हम तुम्हारा एक ज्यूस नेशनल होम बनाएंगे, उस वादे को पूरा करने का वक्त जो है आ चुका था। ब्रिटिश मैंडेट ने उन तीनों एग्रीमेंट में से तीसरे एग्रीमेंट को जो है पूरा करने की कोशिश की। अब उस वादे को किस तरीके से जो है पूरा किया गया है, तो उस वादे को पूरा करने के लिए जाहिर सी बात है कि कोई भी जो रियासत होती है वो रियासत बगैर टेरिटरी के जो है वजूद में नहीं आती है, और ना ही बगैर पॉपुलेशन के जो है वजूद में आती है। टेरिटरी के साथ पॉपुलेशन ब्रिटेन ने पूरी दुनिया के अंदर जो यहूदी फैले हुए थे उनको लाकर बसाने का काम ब्रिटेन ने किया। शुरू में जो है कुछ पाबंदियां जो है आयद की गई कि सिर्फ जो है एक साल के अंदर 1,000 या 5,000 यहूदी जो है ब्रिटेन इसमें फलस्तीन में आकर बस सकते हैं, लेकिन बाद में वो पाबंदी जो है खत्म कर दी गई। ये एक एक चार्ट है जो मैंने यहाँ पर आप लोगों के सामने रखा है, जिससे पूरी जो सिचुएशन है उसका आप लोग अंदाजा कर सकते हैं कि 1922 में एक सेंसस हुई। ब्रिटिश मैंडेट ने किया होगा ये 1922 का सेंसस। 1922 का सेंसस हमको ये बताता है कि उस वक्त जो मुस्लिम्स वहां पर रह रहे हैं वो 78% की उनकी आबादी है, और 1900 जो क्रिश्चियंस है वो 9% है, जो ज्यूज हैं वो 11% है, कुछ और लोग हैं वो 1% है। यानी सिर्फ 83,694 ज्यूज वहां पर मौजूद थे 1922 के अंदर। फिर 1931 के अंदर जो है इनकी तादाद 16% हो जाती है। अब आप देखिए 11 से जो है 16%, और ठीक दुगनी तादाद यानी परसेंट अगर आप छोड़ दें तो 83,694 से ठीक 1,74,610 हो जाती है। इसके बाद जो है सेंसस वहां पर नहीं हो पाया, लेकिन 1946 में एक सर्वे हुआ जब मुसलमानों की आबादी वहां 58% जो है हो जाती है, और यहूदियों की आबादी 32% को क्रॉस कर जाती है। देखिए 1922 में जो है ये सिर्फ 11% है, और 1946 में ये तकरीबन 33% हो जाते हैं। यानी जो है इनकी तादाद 3 गुना यहाँ पर बढ़ जाती है। और ये पीरियड वो है जब जो हिटलर का पीरियड जो हम लोग बोलते हैं जर्मनी के अंदर, कि अब जर्मनी में भी जो है इनको खदेड़ा गया, और अब जाहिर सी बात है कि इनको एक मौका जो है मिल गया, और ब्रिटिश मैंडेट के जरिए से इनको फलस्तीन में बसने का मौका मिल गया। अगर हिटलर का जुल्म होता और ब्रिटेन की हुकूमत वहां पर नहीं होती, ऑटोमन एम्पायर वहां पर अभी होती वहां पर, तो जाहिर सी बात है कि ज्यूस नहीं बस पाते, है ना, और वो वहीं जो है खत्म हो जाते। तो एक बड़ी तादाद थी जो यहाँ पर आ चुकी थी। उसके बाद 1947 में एक अंदाजा जो है लगाया गया, और ये कहा गया कि 60% की जो आबादी है ये मुस्लिम्स की है, और ये जो है 30% की जो है आबादी ज्यूस की है। ये एक अंदाजा था, है ना। सर्वे जो है 46 में हुआ, लेकिन 1947 में
हो सकता है कि किस अंदाज से आबादी बढ़ रही है ना, उस अंदाज से लोगों ने इसका अंदाजा किया हुआ है, एक एस्टिमेट किया हुआ है। बहरहाल यहाँ पर बताने का सिर्फ जो है मतलब ये है कि किस तरीके से धीरे धीरे जो है आबादी यहूदियों की बढ़ती रही ब्रिटिश मैंडेट के जरिए। अब आप देखिए कि यहाँ पर जो इमिग्रेशन थी किस अंदाज से हुई। 1922 में सिर्फ 7,844 यहूदी आए, 1931 में 4,075, और ये 1935 में देखो 61,854। यानी सबसे ज्यादा अगर आप देखें 1945 तक, 1922 से लेकर 1945 तक, तो ये 1935 में 61,854 यहूदियों ने जो है हिजरत की फलस्तीन के अंदर। और ये वो पीरियड है जब जर्मनी में जो है हिटलर हुकूमत कर रहा है और वहां से इनको खदेड़ा जा रहा है, मारा जा रहा है ना। ये सारी चीजें जो है हम लोग जो है देख सकते हैं। इसी तरीके से इस चार्ट के अंदर एक चीज और हमको मिलती है, वो है जमीन का मसला। यानी उस वक्त इनके पास कितनी लैंड थी। तो 1922 में जब ब्रिटिश मैंडेट शुरू होता है तो इनके पास टोटल 3% यानी 3% भी लैंड नहीं है, 2.96% लैंड है। लेकिन 1944 में आते आते और 1946-48 में आते आते इनके पास तकरीबन 6% लैंड हो जाती है, यानी धीरे धीरे वो कब्जा करना शुरू कर देते हैं। अब जाहिर सी बात है कि इतनी बड़ी आबादी जब होगी और दूसरे मुल्कों से आएगी तो वहां पर क्लैश होना ये बिल्कुल एक तरीके से, इसमें कोई दो राय नहीं है ना, ये होना है। तो उसके नतीजे में वहां पर एक सिविल वॉर हुआ, और खास तौर से जो 1939 का जो सिविल वॉर है, और 1939 के सिविल वॉर में जबरदस्त मतलब जो है नुकसान हुआ वहां फलस्तीनी आवाम का। उस मौके पर ब्रिटेन ने जब ये देखा कि आए दिन जो है वहां पर सिविल वॉर हो रहा है फलस्तीनियों और यहूदियों के दरमियान में, तो ब्रिटेन ने उस पीरियड में बहुत सारे कमीशंस वहां पर अपॉइंट किए, ये जानने के लिए कि आखिर इस सिविल वॉर की वजह क्या है। हालांकि ब्रिटेन खूब जानता था कि सिविल वॉर की वजह क्या है। सिविल वॉर की वजह यह है कि ज्यूस इमिग्रेशन वहां पर एक बड़े पैमाने पर हो रही है। और हर कमीशन ने, यानी जो ब्रिटेन ने खुद अपने जो जितने कमीशन बनाए थे, उन सब कमीशन ने ये रिपोर्ट ब्रिटेन को दी कि इसकी असल वजह और असल जो झगड़े की बुनियाद है वो ज्यूस इमिग्रेशन है, यहूदियों का यहाँ पर आकर बसना है। लेकिन ब्रिटेन ने इस पर जो है कोई तवज्जो नहीं थी। अब एक रोल तो हमारे सामने आया ब्रिटेन का, जो पहले आ चुका है, कि ब्रिटेन ने किस तरीके से जो है दो तीन पार्टी से जो है, दो तीन लोगों से एग्रीमेंट किए और दोनों तीनों को भूल गया, लेकिन यहूदियों का एग्रीमेंट उसको याद रहा। एक रोल हमने जो है लीग ऑफ नेशन का देखा, और लीग ऑफ नेशन का जो रोल था वो ये था कि फलस्तीन की मुखालफत के बावजूद, यानी कि फलस्तीनी नहीं चाहते थे कि यहाँ पर ज्यूस स्टेट बने, और सिर्फ अगर चाह रहे होंगे तो 10% यहूदी इस बात को जो है चाह रहे होंगे कि यहाँ पर एक ज्यूस नेशनल होम बन जाए। लेकिन उसके बावजूद लीग ऑफ नेशन ने ब्रिटेन को ये अथॉरिटी दी कि आप जो है यहाँ पर हुकूमत करें। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस पॉइंट के अंदर ये बात लिखी हुई थी, उस ब्रिटिश मैंडेट के जो आर्टिकल थे उनमें ये बात लिखी हुई थी कि आप उस वक्त तक हुकूमत करें जब तक कि यहाँ के लोग हुकूमत करने के जो है काबिल नहीं हो जाते। यानी वो ये समझते थे कि हुकूमत जो है करना सिर्फ और सिर्फ वेस्ट और यूरोप के लोगों को जो है आता है। चुनांचे लीग ऑफ नेशन के आर्टिकल में ये बात लिखी गई। तो एक किरदार और एक जो मुजरिम जो है लीग ऑफ नेशन था, और उसने जो कुछ किया उससे हम सब लोग जो है वाकिफ हैं कि उन्होंने ब्रिटेन को ये अथॉरिटी दे दी, आप यहाँ पर हुकूमत जो है
कर सकते हैं, यहाँ एक हुकूमत जो है कायम कर सकते हैं। और फिर ब्रिटेन ने अपना खेल वहां पर खेला कि जब ब्रिटिश मैंडेट शुरू हो गया तो बड़े पैमाने पर जो पूरी दुनिया में यहूदी फैले हुए थे उनको लाकर यहाँ पर बसा दिया गया। अब एक तीसरा और खेल होता है जो यूनाइटेड नेशन के जरिए होता है। मैं ये सारी बातें इस वजह से आप लोगों के सामने रख रहा हूं कि किसी कन्फ्लिक्ट को जन्म देने में, किसी कन्फ्लिक्ट को हवा देने में कैसे कैसे खेल होते हैं, कैसे कैसे पार्टी सामने आती हैं, और वो जो दुनिया के इंसाफ के अलमबरदार होते हैं और दुनिया जिनसे इंसाफ की तवक्को रखती है और दुनिया ये चाहती है कि वो फैसला करें, वो इंसाफ करें, दुनिया उनको जज मानती है, दुनिया उनको काजी मानती है, लेकिन वो क्या इंसाफ करते हैं ये आप लोग बखूबी इस मसले से जो है अंदाजा लगा सकते हैं। इस वजह से मैं बात यहाँ पर बयान कर रहा हूँ कि एक ब्रिटेन था, दूसरा लीग ऑफ नेशन था, और अब तीसरा जो खेल किया वो इस मसले में किया यूनाइटेड नेशन ने। यूनाइटेड नेशन ने क्या किया? यूनाइटेड नेशन ने एक पार्टीशन प्लान तैयार किया, और वो पार्टीशन प्लान था 1947 का। उस 1947 का जो पार्टीशन प्लान था, जो 181 उनका रेजोल्यूशन था, उसमें फलस्तीन को दो रियासतों में, दो स्टेट में बांटने का एक रेजोल्यूशन यूनाइटेड नेशन ने पेश किया। अब कैसे बटेगा वो? अब इंसाफ का तकाजा तो ये था कि वो इस अंदाज से बढ़ता कि जितनी अरब पॉपुलेशन है फलस्तीन के अंदर, उनको उनके हिसाब से, उस पॉपुलेशन के हिसाब से जमीनें दी जाती। उनकी कितनी पॉपुलेशन उनके पास, उनकी कितनी जमीनें उनके पास है, उस हिसाब से दी जाती। और जो ज्यूस कम्युनिटी है, जो यहूदी हैं जो आकर बस गए हैं, उनके पास उनकी कितनी पॉपुलेशन है उस हिसाब से उनको जो है जमीनें दी जाती, और उनके पास कितनी लैंड है उस हिसाब से उनको जमीनें दी जाती। लेकिन अब उन्होंने खेल क्या किया, किस तरीके से फलस्तीन के दो टुकड़े किए, इसको हम समझते हैं। उन्होंने कहा कि अरब्स को 45% एरिया मिलना चाहिए। ये जो ग्रीन जो इलाका है ये अरब स्टेट होगा, है ना, जिसमें नजारत है, हैफा है, हैफा नहीं है, नजारत, नावलुस, जेरूसलम, बेतलेहम, हेब्रोन, गाजा वगैरह के जो इलाके हैं, ये जो है 44% का इलाका है, ये अरब्स को मिलना चाहिए। हालांकि जो अरब की पॉपुलेशन है उस वक्त तकरीबन 69% है, 70% के करीब है। इसी तरीके से ज्यूस के बारे में कहा इन्होंने पार्टीशन प्लान में कि 55% लैंड इनको मिलनी चाहिए। हालांकि ज्यूस की जो आबादी है वहां पर वो सिर्फ 31% है। यानी कह रहा है अगर आप पार्टीशन करना चाह रहे हैं तो दो हिस्सों में तकसीम कीजिए, है ना। लेकिन दो हिस्सों में तकसीम करने के बजाय उन्होंने 44%, 44% अरब्स को दिया, हालांकि उनकी आबादी 69% है। ज्यूस को उन्होंने 55% दिया, हालांकि उनकी आबादी 31% है। इसी तरीके से उन्होंने अरब्स को 45% उस वक्त दिया जबकि उनके पास 95% लैंड है। ये अभी हम लोग देख चुके हैं इसमें, यहां पर कि ज्यूस लैंड सिर्फ जो है यहां पर 6% है। शुरू में 1922 में 2% थी, है ना, तो बाकी की जो लैंड थी वो 95% अरब्स के पास थी। लेकिन उनसे कहा जा रहा है कि आप जो है 44% लैंड पर जो है अपने आप को मुतमईन कर लो, सब्र कर लो। और यहूदियों के पास 1922 में सिर्फ 3% लैंड थी, और 1948 तक वो 6% लैंड पर कब्जा कर चुके थे। 6% लैंड थी जिस वक्त ये पार्टीशन प्लान की बात चल रही। यूनाइटेड नेशन ये कह रहा है कि दो स्टेट होना चाहिए, कुछ एक अरब स्टेट, एक ज्यूस स्टेट, और ज्यूस स्टेट को 55% लैंड मिलनी चाहिए। उस वक्त सिर्फ ज्यूस कम्युनिटी के पास 6% लैंड है। ये है वो इंसाफ जो आलमी इदारों ने मुसलमानों के साथ किया है, और जिसकी सजा आज तक फलस्तीनी आवाम जो है भुगत रही है, और न जाने कब तक
इनके जो काले कारनामों को वो लोग जो है भुगतते रहेंगे। तो ये एक पार्टीशन प्लान है। अब इसमें भी और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि इसको भी जो है, जाहिर सी बात है कि ये पार्टीशन प्लान अरब के लोग तो मान ही नहीं सकते थे। अरब के लोग तो इस पार्टीशन प्लान को मान नहीं सकते थे। उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये एक बड़ा धोखा है उनके साथ कि जब उनके पास खुद 95% लैंड है और अब उनसे कहा जा रहा है कि आप जो है 44% ले लीजिए। भाई जिसके पास कम हो उसको अगर आप ज्यादा दे दें तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो खुद 95% लैंड लेके बैठा हुआ है उससे आप ये कहें कि नहीं अब आप कुछ लैंड खाली कर दीजिए और आप 44% जो है लैंड पर जो है रहिए, सब्र कीजिए, इतना ही पाइए, जबकि आपकी आबादी 69% है। तो अरब के लोग तो इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं थे, अरब के लोगों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन यहूदियों ने भी इस पार्टीशन प्लान को एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन वो चाह रहे थे कि हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हमारी एक रियासत स्टेट बन जाएगी और उसके बाद हम जो है धीरे धीरे अपनी जो एक्सपेंशन इस रियासत को जो है इसको इसकी तोसी करते रहेंगे, इसको जो है बढ़ाते रहेंगे। तो यहूदियों ने इस बात को जो है एक्सेप्ट कर लिया। अब आता है कि ये पार्टीशन किस तरीके से हुआ। अब देखिए जिस तरीके से ब्रिटेन हमारे यहाँ हुकूमत कर रहा था और दूसरी जंग अजीम के बाद जब उसकी पोजीशन बहुत ही खस्ता हो गई तो फिर ब्रिटेन जहां जहां हुकूमत कर रहा था, जहां जहां उसने कॉलोनीज बना रखी थी, वहां से अपनी जमीन वो खाली करता हुआ जा रहा था, है ना। उसी पीरियड में हमारा मुल्क जो है 15 अगस्त 1947 को आजाद हो चुका था। इसी तरीके से 15 मई 1948 को ब्रिटेन ने जो है आखिरी अपनी जो फौज की जो टुकड़ी थी, या ये कहिए कि ब्रिटिशर्स थे, उनको जो है हैफा के बंदरगाह से होते हुए उनको वापस ब्रिटेन बुला लिया और ये ऐलान कर दिया गया कि भाई ये दो स्टेट का जो पार्टीशन था, फलस्तीन का 2 स्टेट था, उसको जो है नाफिज कर दिया गया। अब ये 15 मई को स्टेट ऑफ इसराइल का जो है ऐलान कर दिया गया। उसी दिन 14 मई को ही कर दिया गया और उन्होंने कहा कि हमारा मुल्क जो है बन गया है। अब देखिए एक बड़ी ऐसी बात उन्होंने, मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये, कि इसराइल के लोगों ने ये नहीं कहा कि 14 मई 1948 को हमने इंडिपेंडेंस हासिल की, है ना, बल्कि उन्होंने कहा है कि इसराइल पैदा हुआ, है ना। ये भी एक अहम चीज है कि क्योंकि उस बात की कोशिश कर रहे थे वो, और इससे पहले जो है इसराइल का वजूद नहीं था। चुनांचे उन्होंने जो है ये कहा है कि 14 मई को जब ब्रिटेन ने वहां से खाली कर दिया तो उन्होंने कहा कि हमको जो है एक स्टेट ऑफ इसराइल पैदा हो गया। और 15 मई से वहां पर जबरदस्त तरीके की तबाही जो है देखने में आई, क्योंकि फलस्तीनी जो है अब बेयारो मददगार हो गए, उनके पास कोई ऑप्शन वहां पर जो है नहीं था। इस दरमियान में इसराइल के कई टेररिस्ट जो है ऑर्गेनाइजेशन थी जो काम कर रही थी, और ब्रिटेन जाहिर सी बात है कि उनके लिए फेवरेबल जो ग्राउंड्स थे वो तैयार कर रहा था। और वो जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी जो काफी लैस थी और ट्रेनिंग उनको दी जा चुकी थी, और इस हद तक ट्रेनिंग दी जा चुकी थी कि वो एक आर्मी का जो है वो मुतबादिल बन सकती है, आर्मी का जो है मुकाबला कर सकती है। इसमें बहुत सारी जो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, हगाना, एयरगन, ये उनके, ये जो आज इसराइली डिफेंस फोर्स है, ये आईडीएफ है, ये वही जितनी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी उन्हीं के लोग थे जो इसराइली डिफेंस फोर्स कायम कर दी गई। और 15 मई को
जो है नकबा डे हुआ, यानी एक बड़े पैमाने पर फलस्तीन की तबाही जो है देखने में आई। 9 लाख लोग जो है जिस तरीके से हमारे यहाँ पार्टीशन के मौके पर जो है कत्ल हुए, इसी तरीके से 9 लाख लोग जो है वहां पर जो है कत्ल हुए। और 9 लाख के तकरीबन ही जो है फलस्तीन की जो पॉपुलेशन थी उसको जो है बेदखल कर दिया गया और बड़ा खून खराबा हुआ। आज तक फलस्तीनी 15 मई को जो है नकबा डे मनाते हैं, उस तबाही के दिन को मनाते हैं। और ये बड़े पैमाने पर एक एथनिक क्लिनसिंग थी। यहाँ तक कि बड़े बड़े जो इसराइली जो हिस्टोरियंस हैं, एक बड़ा नाम इसमें यान पापे का आता है, उसने खुद किताब एथनिक क्लिनसिंग ऑफ पैलेस्टाइन एक किताब लिखी, जो खुद इसराइल का हिस्टोरियन है। और जो आबादी जो उस वक्त फलस्तीन की आबादी थी जो रह रही थी, उन इलाकों के अंदर रह रही थी, जाहिर सी बात है कि उनके पास 95% लैंड थी। अब जो है 44% लैंड पर उनको आना था। लेकिन जो है अब एक बड़े पैमाने पर जो है उनको बेदखल किया जा रहा था, उनकी जमीनों को, उनके मकानात को खाली करवाया जा रहा था, उनके मकानात को जो है बिल्डोज किया जा रहा था। और यहाँ तक किया गया कि जो कुएं थे, जो पानी के कुएं थे, उसमें भी जो है जहर जो है डाल दिया गया ताकि कोई अगर पानी पिए तो वो जो है खत्म हो जाए। इसराइल इस बात को छुपाता रहा, लेकिन अभी जब ये कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है तो हारेट्ज ने अपनी बाकायदा रिपोर्ट जारी की है, जो खुद इसराइल का अखबार है, और उसमें इन सब बातों को एक्सेप्ट किया गया कि किस तरीके से एक बड़े पैमाने पर फलस्तीनी आवाम का कत्लेआम इस 15 मई को हुआ 1948 में, कि 9 लाख लोग कत्ल किए गए, 9 लाख लोग जो है अपने घरों से निकाल दिए गए। उसके नतीजे में एक जंग होती है और अरब इसराइल वॉर, ये जंग कहलाई जाती है, 1948 में होती है। अब ये भी एक बड़ी अहम बात है और इंटरेस्टिंग बात है कि वो इसराइल जिसने एक्सेप्ट कर लिया था पार्टीशन प्लान, और जिसमें यहूदियों को सिर्फ 55% लैंड दी गई थी, 55% लैंड दी गई थी अकॉर्डिंग टू यूएन रेजोल्यूशन। लेकिन अरब इसराइल वॉर के बाद जो 1948 में हुई, इसराइल ने 78% लैंड पर जो है कब्जा कर लिया। और फिर वो जो जंग थी, वो आर्मिस्टिस एग्रीमेंट जिसको कहा जाता है, उस एग्रीमेंट के बाद ये जंग थमी। और लेकिन तब तक जो है 78% लैंड पर इसराइल जो है कैप्चर कर चुका था। अब यहां पर दोबारा यूएन का रोल हम देखते हैं कि यूएन के खुद पार्टीशन प्लान ने ये कहा कि इसराइल को 55% मिलना चाहिए। हालांकि हम उस पर भी हमने क्वेश्चन मार्क लगाए हैं कि इतनी जमीन उनको नहीं देनी चाहिए थी, इंसाफ का तकाजा नहीं था। लेकिन इसराइल उस 55% लैंड पर भी इसराइल ने अपने आप को नहीं रोका और उसने 78% लैंड पर कब्जा कर लिया। जब यूएन ने ये बात देखी कि 78% लैंड पर कब्जा कर चुके हैं, तो फौरन यूएन ने अपना एक दूसरा रेजोल्यूशन पास कर दिया। पहले वाला जो रेजोल्यूशन था 181 था, ये 242 रेजोल्यूशन था, और जिसमें ये कहा गया है कि अब आपने 78% पर कब्जा कर लिया तो 78% पर आप मुतमईन रहिए, इससे आप ज्यादा पर कब्जा ना करें। और 22% का जो इलाका है, जो वेस्ट बैंक और गाजा का इलाका है, ये 22% लैंड है जो बची हुई है। जो बात की जाती है वो यही टू स्टेट सॉल्यूशन है कि इसराइल 78% लैंड पर रहे और 22% जो है लैंड में, जिसमें वेस्ट बैंक और गाजा का इलाका शामिल है, जो फलस्तीनी इलाका कहा जाता है आज के पीरियड में। हालांकि इसराइल का जो भी पूरा इलाका है वो फलस्तीन का इलाका है, लेकिन आज का जो इलाका है वो 22% है। तो अब जो रेजोल्यूशन पास किया है यूएन ने 242, उसी पीरियड में किया है। तो मैं ये बात आप लोगों के सामने बयान कर रहा था कि किस तरीके से जो
ہمارے جو کہتے ہیں کہ انصاف کے جو علمبردار ہوتے ہیں، اور جن اتھارٹیز پر، جن انسٹیٹیوشنز اور جن اداروں پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ یہاں سے ہم کو انصاف مل جائے گا اور ہم ان پر جو ہے بھروسہ کر لے جاتے ہیں، ان کا رول بھی ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج جن اداروں پر ہم بھروسہ کر رہے ہیں، ہسٹری کے اندر، تاریخ کے اندر ان کا کیا رول رہا ہے، یہ ہم کو جو ہے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کہ وہی یونائٹیڈ نیشن جو اپنا ایک فیصلے کو بدل رہا ہے، پہلے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو فلسطین ہے اس کو جو ہے 45% لینڈ مل جانا چاہیے، اب وہ اپنے ریزولوشن میں یہ کہہ رہا ہے کہ کیونکہ اسرائیل نے قبضہ کر لیا ہے، چنانچہ وہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ 78% پہ جو ہے اسرائیل کا قبضہ ہوگا، اور 22% فلسطین کو جو ہے 22% پر جو اکتفا کرنا پڑے گا، ان کو اتنے پہ ہی صبر کرنا پڑے گا۔ پھر اس کے بعد جو ہے 1967 کی وار ہوتی ہے، 67 کی، جس میں پورا کا پورا فلسطین جو ہے ان کے انڈر میں چلا جاتا ہے، لیکن وہ کسی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ اسی ریزولوشن کی وجہ سے انہوں نے وڈرا کیا ہو، اور واپس وہ 78% لینڈ پر وہ جو ہے قبضہ کر لیتے ہیں۔ یہ جو 78% ہے یہ تو لیگل ان کا قبضہ ہے، اس کے علاوہ جو 22% کا علاقہ جو فلسطینی عوام کو دیا گیا ہے، فلسطینی اتھارٹی کو دیا گیا ہے، حالانکہ ابھی وہاں پر ان کی حکومت واضح طور سے قائم نہیں ہو سکی ہے، لیکن اس میں بھی ان کے بڑے بڑے جو ہے سیٹلمنٹس انہوں نے قائم کر دیے ہیں، خاص طور سے ویسٹ بینک کے اندر۔ غازہ میں تو وہ ختم کر چکے ہیں، کل ہم اس پر بات کریں گے۔ تو ویسٹ بینک کے اندر انہوں نے ایک بڑے پیمانے پر سیٹلمنٹ جو ہے قائم کر رکھے ہیں، اور تقریباً 90% کا علاقہ ابھی بھی اسرائیل کے قبضے میں ہے۔ تو یہ، اور اس کے باوجود جو ہے یونائٹیڈ نیشن بالکل ایک دم خاموش موڈ میں ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ یونائٹیڈ نیشن بالکل جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے نا، لیکن ہمارے سامنے ایسے پیش کیا جاتا ہے کہ بالکل انصاف یہیں سے ملے گا، اور بڑی جو ہے اس کوششیں ہیں، لیکن اس کی حیثیت یہ ہے کہ وہ ابھی تک جو ہے 60-70 سال میں ایک انصاف نہیں کر سکی ہے، فلسطین کے عوام کو اپنا حق جو ہے نہیں دلا سکی۔ اب کل کے یہ پیریڈ میں تو کل ہم ان سب پہ اور جو بات کریں گے، کہ کل ہم 2-3 چیزوں کے بارے میں بات کریں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ اسٹیٹ آف اسرائیل کی بنیاد، جو ہم نے شروع میں یہ بات کہی تھی کہ اسٹیٹ آف اسرائیل کی بنیاد مذہبی بنیادوں پر اسٹیٹ آف اسرائیل قائم ہے، تو وہ مذہبی بنیادیں کون سی ہیں، اور کیا وہ بائبل سے دلائل ڈھونڈ کر لاتے ہیں، کیا ریفرنس وہ لے کر آتے ہیں، اس پر ہم بات کریں گے۔ اور جو کرنٹ پوزیشن ہے، اس وقت جو کچھ چل رہا ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ اور تیسرا جو ہے غازہ سے ریلیٹڈ ہم جو سچویشن ہے، اور ابھی جو حالیہ دنوں میں جو کچھ ہوا، اس پر ہم کل جو ہے انشاءاللہ بات کریں گے۔ اس میں آپ لوگوں کا کوئی سوال ہو تو آپ لوگ جو ہے کر سکتے ہیں۔